लास्ट क्लास याद होगा तो जस्ट अ मिनट गाइस। सो हम लास्ट क्लास में इस बारे में, हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि हाइपोथेटिकल टेस्ट को लाइक वैलिडेट करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच, लाइक पी वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू अप्रोच। एनीवे अगर तुम थोड़ा सा भी समझदार हो तो आपको फाइंड करोगे तीनों एक ही है, कोई तीनों में बहुत डिफरेंस है नहीं, तीनों एक जैसे ही लगते हैं। फिर मैंने कल उस दिन आपको बताया था कि लेफ्ट साइडेड क्या है, राइट साइडेड क्या है और बोथ साइडेड क्या है। चलो एक प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। देखो सपोज पहले एक एग्जांपल देखते हैं, देन वी विल गो फॉर प्रॉब्लम। सपोज यू हैव एनी डेटा एंड दे आर सेइंग कि सपोज माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 10%. Level of significance is 10% means alpha is equal to, just a minute, level of significance is saying 10%. Suppose any problem, so it means alpha is 0.1. And then you have to calculate sometimes maybe whether this hypothetical test will whether we are going to accept like reject or not reject that hypothetical test, that is h naught. Okay, suppose this is a left like this sign, so definitely your if it is greater than, definitely alternative will be left sign, less than sign. So if it is less than, it means it's a left sided, correct? मैंने बोला था ना कि हम हमेशा इसको देखते हैं, if it is left then less than, it means left sided. Okay, and if it is right greater than, it's right sided, not is equal to both sided. So see carefully, ये हमारा normal distribution है, just see this. And suppose he is saying alpha is equal to 0.1. 0.1 means this is a probability. Okay, so 0 से लेकर के 0.1, तो suppose this is the point where all this value is 0.1. Let's take an example. So I'm saying this is 0.1 probability. So this probability is basically 0.1, 0.1. So alpha is equal to 0.1, correct? Now someone is now you have to find what is p value. So we have to calculate z for that, and we already know what is z. Z is equal to x minus mu divided by sigma, करेक्ट। अगर सिग्मा ये सैम्पल का है, अगर पॉपुलेशन का है तो सिग्मा अपॉन रूट एन, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस थ्योरी। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस, वी विल सी दिस डेटा इज प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा, एंड देन वी विल फाइंड द जेड के हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सपोज दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड पी वैल्यू। सो वी आर कैन से एन पी डॉट, नॉट एन पी ना, सो नॉर्म डॉट ना, सॉरी, so you can say norm dot cdf and from what, from z. so z तक की निकाल लेंगे। suppose this value is p value, this p value is greater than alpha, this p value is greater than alpha. whenever our p value is greater than alpha, जब भी p की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी, we can accept the null hypothesis. if our p value is less than alpha, we have to reject the null hypothesis. नाउ दिस इज लेफ्ट साइडेड, सपोज इट इज राइट साइडेड प्रॉब्लम। देखो मैं अभी आते हैं क्वेश्चंस पे, जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन। सपोज इट्स राइट साइड प्रॉब्लम, और आपको पता है ऑलरेडी हाउ कैन फाइंड द राइट साइड, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। सपोज यू अंडरस्टैंड इट्स राइट साइड प्रॉब्लम, सो योर अल्फा सपोज आउट 0.1 फ्रॉम हियर, यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर, सो दिस इज मे बी, दिस इज योर 0.1, नाउ दिस टाइम दिस इज योर 0.1, and if this is z value, suppose you calculate the z value again. Now if you want to calculate p value, p is equal to 1 minus norm this, 1 minus why, because you have to calculate from this way, so again this way. So suppose this value is greater than alpha, again p is greater than alpha, suppose p greater than alpha, definitely वो p कहीं यहाँ पे हो जाएगा, p greater than alpha मतलब वो यहाँ पे हो जाएगा, कहीं पे यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर हम उसको null hypothesis को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ऑलवेज द कंडीशन इज p हैज टू ग्रेटर देन अल्फा, चाहे वन साइडेड है, टू साइडेड हो, बोथ साइडेड हो, राइट साइडेड हो, किसी भी साइडेड हो, ऑलवेज यू हैव टू थिंक p greater than alpha. if p greater than alpha, we can accept the null hypothesis, otherwise we can reject the null hypothesis. so, accept को क्या बोलते हैं, does not reject, ठीक है। so let's see one problem and then we are able to understand more. just let's try to write a problem and that problem will help you. actually book की एक problem है, see carefully. the problem is, listen carefully, the man see, there is a question. The mean responsive time for a random sample of 30 pizza delivery is 32 minutes. See carefully what is saying. एक बार मैं अभी हटाता हूँ and see carefully the question.
सी the mean response time for a random sample of 30 pizza delivery in a see carefully for a mean response time per a random sample of 30 pizza delivery in 32 मिनट। तो रैंडम सैंपल मतलब सॉरी इसका मतलब 13 पिज्जा डिलीवरी बॉयज हैं जो मीन जो है इसका 32 मिनट है, मतलब 32 मिनट के आसपास वो क्या करते हैं, पिज्जा को डिलीवरी देते हैं। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज बिलीव टू बी 10 मिनट। इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो 10 मिनट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब जो है आपका जो ये सिग्मा है डेफिनेटली द 10 मिनट है, इसका मतलब 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब कोई 42 मिनट में डिलीवरी करता है, कोई 22 मिनट में करता है, ये अप डाउन है। चलो आगे क्वेश्चन सुनो। द पिज्जा डिलीवरी सर्विस डायरेक्टर वांट्स टू परफॉर्म ए हाइपोथेटिकल टेस्ट विथ अल्फा इज इक्वल टू 0.05 मतलब 5% सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू डिटरमाइन वेदर सर्विस गोल ऑफ 30 मिनट वेदर सर्विस गोल ऑफ 30 मिनट और लेस इज बीइंग अचीव्ड। मतलब उसको पता करना है कि जो मेरा सर्विस गोल है कि मैं 30 मिनट के अंदर जाता है वो जा भी पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। सी केयरफुली, जब भी आपके पास डेटा हो ट्राई टू फाइंड इन टू वे। मेरे को सैंपल में क्या गिवन है और मेरे को पॉपुलेशन में क्या गिवन है। It's saying alpha is equal to 0.05, that one point. Then it's saying mu is equal to 30 minute, that is another thing. ये mu जो है वो पॉपुलेशन का है, बट सैंपल का जो मीन आया है वो 32 आया है ना। 30 सैंपल का 32 आया। नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 30 है। 30 लोग 32 मिनट डिलीवरी करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन तो 30 मिनट में है ना, डिलीवरी 30 मिनट में होना चाहिए। तो अल्फा एंड द सिग्मा इज ऑल्सो प्रोवाइड, दैट इज 10 मिनट। Now he's saying let's calculate whether our hypothetical test is he want to perform a hypothetical test कि जो उसका सर्विस गोल है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, that is a hypothetical test. So let's do this. Let me delete this. पता नहीं क्या हो रहा है यार, कभी कभी ना काम ही नहीं करता कुछ यार। सी क्या लिखता हूँ मैं, सैंपल पॉपुलेशन। हमें सैंपल का मीन कितना गिवन है, x बार 32, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 30। इसका मतलब 30 लोगों पर देखा गया तो 32 मिनट में पिज्जा को डिलीवरी करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 0.05 मतलब 5%। पॉपुलेशन का मीन कितना है, 30, बिल्कुल 30 होना चाहिए, है ना। पॉपुलेशन का मीन 30 है ना, 30 होना भी चाहिए। 30 क्यों होना चाहिए, समझ में आ रहे हो, क्योंकि पिज्जा 30 मिनट में डिलीवरी होता है और इसका डेविएशन कितना है, 10 है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें हाइपोथेटिकल टेस्ट करना है यहाँ पे ना। सो पहले हाइपोथेटिकली वी हैव टू डिसाइड कि हम चाहते क्या हैं, एंड देन वी हैव टू प्रूव वेदर इज करेक्ट और नॉट। गॉट इट। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। फर्स्ट देखो हमारे पास हाइपोथेटिकल टेस्ट क्या है। हाइपोथेटिकल टेस्ट ये है कि हम मान के चलते हैं कि हम जो हमारा सर्विस गोल है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। मतलब जो हमारा मीन है वो लेस देन इक्वल टू 30 है। इसका मतलब अल्टरनेटिव टेस्ट जो है वो ग्रेटर देन 30 है। ये हाइपोथेटिकली बात समझ में आई। वी आर एक्सेप्टिंग दैट कि हाइपोथेटिकली वी आर एक्सेप्टिंग दैट कि हमारा जो गोल है वी आर अचीविंग इन 30 मिनट। अब कोई बताइए, आप में से कोई जना भी बताइए इस बात को कि आपको समझ में आ रही है ये बात कि नहीं, कि जो हाइपोथेटिकल टेस्ट हमने माना है ये सही है गलत है। कोई भी जना बताइए जो आपने यहाँ पे माना है वो सही है गलत है। मतलब ये ठीक आपको समझ में आ रही बात जो मैंने ले लिया हाइपोथेटिकल टेस्ट लेस देन 30। एक सेकेंड,
हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, है ना? सो यू आर एक्सेप्टिंग दिस इज करेक्ट ना? थैंक यू। सॉरी, ठीक है। सो हाइपोथेटिकल टेस्ट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू, है ना? ये सही है सभी को? ठीक है, वेरी गुड। किसी को डाउट इसमें? सही है, मतलब कि हमने हाइपोथेटिकली माना है ये वाला पार्ट, है ना? अब इसको जरा सोचिए आप लोग कि क्या करेंगे हम लोग। सो नाउ वी हैव टू फर्स्ट चेक, तो अल्फा में पता, हमें पी वैल्यू निकालना पड़ेगा फॉर दिस वन। अगर पी वैल्यू निकाल पाते हैं दैट एवरीथिंग इज करेक्ट ना। सो हैव टू कैलकुलेट द पी वैल्यू। जस्ट थिंक हाउ कैन वी कैलकुलेट द पी वैल्यू। ऑल ऑफ यू प्लीज थिंक हाउ कैन वी कैलकुलेट द पी वैल्यू। मैं बताता हूं अभी वैसे तो। बोलो जी, क्लियर सभी को? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रही बात? एनी वन ऑफ यू? अब देखो, जस्ट लेट मी परफॉर्म दिस, देखो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताइए, सभी लोग से पूछ रहा हूं, ये लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है? इज इट लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड? एनी वन ऑफ यू? Very good. This is right sided because we have to see this only, na? Analytic. So this is saying greater than, it means right sided. Let's plot here. ठीक है? Alpha is 0.05. We don't know exact position, but this is 0.5. Let's calculate Z here. Z का फॉर्मूला क्या है? X bar minus mu divided by sigma root n. Correct? What is X bar? X bar is 32. Minus mu is 30 divided by sigma is 10 divided by root 30. Calculate this. I think if you calculate this you will find 1.09. Just calculate this and this is the value you will find this. Okay, please calculate this, you will find this value. नाउ चेक द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस। और देखो लास्ट क्लास में हमने जुपिटर पे किया था और पूरा मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशन दादा कैसे निकालते हैं, तो डू द कैलकुलेशन एंड फाइंड पी। अब इतना तो करना पड़ेगा ना यार, रोज तो मैं एक ही चीज थोड़ा बताऊंगा। सो अभी हमने लास्ट क्लास में किया था नॉर्म डॉट सी डी एफ, पुट दिस वैल्यू 1.09, चेक द वैल्यू। यहाँ पे क्या रहा वैल्यू, एक बार सब लोग कैलकुलेट करें। व्हाट इज द वैल्यू हियर? एनी वन ऑफ यू? सो आई थिंक इफ यू चेक इट, कोई बताए कितना आ रहा वैल्यू? एनी वन ऑफ यू एबल टू कैलकुलेट दिस? देखो एक्चुअली ना ये तो राइट साइडेड है ना, तो यहाँ से पी वैल्यू ये नहीं होगा, 1 माइनस के साथ होगा। सो डू द कैलकुलेटर 1 माइनस नॉर्म, है ना? सो कैलकुलेट दिस, व्हाट इज दिस? हाँ करेक्ट अंकित, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल 1 माइनस ही होगा। बिल्कुल मैं ध्यान नहीं दिया दर्पित, तभी तो हमारे देखा तो ध्यान आया। सो दिस 1 माइनस दिस वन, ठीक है? जस्ट कैलकुलेट दिस गाइस। आई थिंक आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.13785 समथिंग, 0.13785. If you calculate this, you'll get this value. So if you get this value 0.13785, this P is 0.13, and your alpha is your alpha is your alpha is 0.05. सो इफ यू वांट टू चेक ना, अगर आप इसकी आपको पता है प्रोबेबिलिटी है तो पीपीएफ निकाल देंगे तो जेड भी मिल जाएगा हमें। बट एनीवे देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दैट वन। सो इज अल्फा, अगर मैं मानता हूं कि अल्फा मेरा 0.05 है इधर से, तो हो सकता है इतनी दूरी हो 0.05 की, है ना?
सो देखो राइट साइडेड का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा ये अल्फा है तो राइट साइड का मतलब ये हुआ कि अब इस वाले पोजीशन में कहीं पे पी आ जाएगा तो मैं पी ग्रेटर देन अल्फा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा ये है। अब इधर से कैलकुलेट करें दिस पी 0.1337 डेफिनेटली इससे तो बड़ा होगा ना, कहीं भी होगा बट इससे तो बड़ा होगा, ये पूरा यहां तक होगा। इसका मतलब P इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर P ग्रेटर देन अल्फा है तो वी हैव टू एक्सेप्ट द null hypothesis. You can say like this, we are not able to reject null hypothesis, so we have to accept the null hypothesis. So definitely we are accepting, इसका मतलब ये है पॉपुलेशन में ओवरऑल वी आर एबल टू, पॉपुलेशन में ओवरऑल वी आर एबल टू क्या, डिलीवर द पिज्जा विद इन 30 मिनट। करेक्ट? किसी को डाउट है इसमें? सोच के बताइए कोई जना जिसको डाउट लग रहा है इसमें, एनी वन ऑफ यू? सब कुछ बताया गया है, कोई सी चीज जो है नहीं जो नहीं बताया गया है, तो प्लीज प्लीज जस्ट चेक एंड लेट मी नो वेदर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। अरे यस नो बताओ ना, समझ में आया नहीं आया? हाँ ना बताओ ना। हाँ रिपीट करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक डिलीवरी मैनेजर है, उसको पिज्ज़ा डिलीवरी मैनेजर है, उसको ये लगता है कि यार क्या हम पिज्ज़ा 30 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं कि ना। अगर मैं 100% के लिए नहीं, वो कहता है कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.5% है। तो कहता है लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू डिलीवर आवर पिज्जा विद इन 30 मिनट और नॉट। वो ये उसका प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम लाइक ही हैज फेसिंग। सो ट्राइंग ओके लेट्स चेक वेदर वी आर एबल टू लाइक डिलीवर द पिज्जा विद 30 मिनट और नॉट। तो वो क्या करता है, 32 लोगों का सैंपल लेता है, और जब सैंपल लेता है तो वो नहीं 30 लोगों का सैंपल, सॉरी, जब वो 30 लोगों, देखो यहाँ पे जब 30 लोगों का वो सैंपल लेता है तो यू फाइंड कि यू आर एबल टू डिलीवर विद इन 32 मिनट। ठीक है? और उसको पता है कि मेरे को पॉपुलेशन का मीन 30 लेना है और स्टैंडर्ड 10 तो है ही है उसके पास ऑलरेडी। अब उसने कहा लेट्स चेक वेदर वी आर एबल टू डिलीवर द पिज्जा विद इन 30 मिनट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो ओके, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.05। वी कैलकुलेट जेड एक्स। अब ये फॉर्मूला में किसी को डाउट थोड़ा ना होगा, यार ये सब तुमने इतनी बार कर लिया फॉर्मूला वगैरह कि आपको इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। सो वी कैलकुलेटेड दिस जेड इज इक्वल टू 30 minus 0.109. For this let's calculate the probability, but problem is this is a right sided, so if this is right sided you have to go from here, है ना। तो अल्फा फ्रॉम हियर एंड पी वैल्यू फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम हियर। सो पूरा 1 होता है, 1 माइनस इतना अगर निकाल घटा देंगे तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमने वही वाला काम किया, है ना, ये वाला काम किया, 1 माइनस नॉन दिस वन, वी आर गेटिंग 0.1375 समथिंग। ओके, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, this value is greater than alpha. If this is greater than alpha, it means we can accept this. Clear हुआ अभी सभी को? So this p is greater than alpha. P greater than alpha means we are not able to reject null hypothesis, so we have to accept this. p वैल्यू के बाद से क्या दीपक कुमार? p वैल्यू के बाद से क्या? p वैल्यू निकाल लिया, अल्फा से बड़ा है तो काम खत्म हो गया ना, बाद से क्या? जो वैल्यू आ गया उसको चेक करो अल्फा से। एक्चुअली p वैल्यू जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, चेक विथ अल्फा, इफ इट ग्रेटर देन अल्फा, व्हाट इट, ओके ग्रेट दीपक। और कोई जन है जिनको डाउट है बताइए, बोलो यार किसी को डाउट है तो। ठीक है, नहीं डाउट है तो लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। सी केयरफुली, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है क्वेश्चन। सो लेट मी राइट वन क्वेश्चन, इट इज मे बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी।
देखो, एक कंपनी है वो पानी का बोतल बेचती है, ठीक है। एक कंपनी है वो पानी का क्या बेचती है, बोतल बेचती है। सुनो, एक कंपनी है वो पानी का ऐसे बॉटल बेचती है, ठीक है। ये बॉटल है और थोड़ा सा ऐसे, और यही बेचती है वो, ठीक है। वो जो एवरेज जो टिक है वो यहीं तक पानी भरती है, ये टिक तक, और ये टिक है 40 का, ठीक है। इसका मतलब पॉपुलेशन मीन कितना हो गया, 40 हो गया। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 12, ठीक है। 40 ये है, नहीं 12 नहीं, सॉरी 8 है, नॉट 12 इज 8, सॉरी इज 8, ठीक है। तो 40 पे बढ़ती जनरेशन 8 है। अब जो इसका सर्विस पानी जो केयर है, वो केयर मैनेजर जो है वो देखता है कि क्या हम 40 ही भर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसने जो है वो 30 सैंपल लिया। जब 30 सैंपल लिया तो वो पाया कि हम अक्सर जो है वो 38 भरते हैं। कितना भरते हैं, 38 भरते हैं। उसने पाया कि हम 38 भरते हैं अक्सर 30 पे। अब वो चाहता है कि लेवल ऑफ सर्टिफिकेट 5% के साथ, लेवल ऑफ 5% के साथ वो चेक करना चाहता है कि क्या हम जो हमारा मीन है, दैट पानी भरने का जो एवरेज है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और नॉट। क्योंकि मैं वो चाहता है कि मैं पानी उससे और या उससे अधिक दे रहे, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट है कि हम 40 फीट तो पानी देंगे ही देंगे। सो इज सेइंग कि थोड़ा ऊपर जाए कोई बात नहीं, नीचे नहीं आना चाहिए। बट जब ही टेक द 30 सैंपल, he find is 38. So he now taking a hypothetical test to find whether we are giving 40 more than or not. So do, मैंने भी आपके लिए hypothetical लिख दिया। अब चेक करके बताइए आप लोग, प्लीज डू द चेक एंड लेट मी नो। आप चेक करिए और बताइए आप लोग कि ये हाइपोथेटिकल टेस्ट आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो जो लोग एक्सेप्ट करेंगे बोलेंगे वो ए पे क्लिक करेंगे, और जो रिजेक्ट करेंगे वो बी पे। जल्दी से करके और मैसेज बॉक्स में ए और बी लिखिए, फटाफट करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट। तब तक मैं 2 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आप लोग करते रहिए। So let's go for the next question, guys. Assume that a sample of 30 milk cartoon provide a sample mean of 505 ml. X bar is 505 ml. 13 sample 505 ml. The population standard deviation to be 10 ml. ये तो हो गया तुम्हारा सैंपल। पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 10 ml. Okay, 10 ml. Perform a hypothetical test that 0.3 level of significance means alpha is equal to 0.03 of 3%. Population mean is 500. Population mean is 500 ml. Population mean is 500 ml, and help determine whether the filling process should contain operating on be stopped and corrected. Listen carefully. He's saying, this is saying, what he's saying, we are filling with a process, that milk bottle, okay, and we have to, population mean is 500, but he take 30 sample is 505. So it's saying कि क्या हम नया process, is there, just a minute guys, एक सेकेंड गाइज ना, जस्ट अ मिनट ना, 1 मिनट यार, इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट अ मिनट। बताइए तो, जी बताइए आप, कोई बताइए आप लोग, समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ, तो हाइपोथेटिक ये हो गया आपका पॉपुलेशन मीन इज देयर, अल्फा इज देयर, दिस। हाँ, क्वेश्चन ये है कि सेइंग वी आर नॉट, वेदर वी आर गोइंग टू लॉन्च अदर प्रोसेस। इसका मतलब हाइपोथेटिकल टेस्ट इज मींस म्यू नॉट इज इक्वल टू 500। तो अगर ये ऐसा हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम उस प्रोसेस पे जाएंगे, अगर ये रिजेक्ट करेंगे तो हमें नया प्रोसेस नहीं चाहिए। इसका मतलब दिस वन इज इक्वल टू, नो सॉरी, this has to be equal to, now because we need a 500 na, so it has to be there 500, so it means not is equal to 500. So if we accept like hypothetical test, then there is no need to go for
other process, like already doing correct, good na, but if we are not accepting that process, we need a other process to fill the bottle, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ exactly 500 करना है. Got it? Now let's do the problem. अब बताओ ये सिंगल है या फिर लाइक वन साइडेड है, टू साइडेड है, सोचो. Whether it's one sided or two sided, any one of you. ये वन साइडेड है, टू साइडेड है? अरे मैंने बोला ना, इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका क्या है, बोथ साइडेड. वेरी गुड. एक्चुअली व्हाट यू हैव टू सी, जस्ट सी द HA अल्टरनेटिव. अगर अल्टरनेटिव ग्रेटर देन बोल रहा है, इसका मतलब राइट साइडेड है. लेस देन बोल रहा है, लेफ्ट साइडेड है. नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, बोथ साइडेड है. और देखो अल्टरनेटिंग, एक शॉर्ट बता दूं, अल्टरनेटिंग टेस्ट विल नेवर हैज इज इक्वल टू. इसके पास हमेशा नॉट इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन कभी इज इक्वल टू नहीं हो सकता है अल्टरनेटिव टेस्ट का. सो लेट्स टेक, दिस इज हाइपोथेटिकली वी आर सेइंग. किसी को डाउट है इसमें? एनी वन ऑफ यू? नहीं ना. सो इफ इट इज 500, if it is 500, we will take the, we don't need a other process. If we are rejecting null hypothesis, we need a other process. Please do this, all of you please start doing this. चलो तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सी दिस गाइस, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम. केयरफुली देखो क्वेश्चन को. हमारे पास क्या गिवन है और क्या करना है. सी, हमारे पास जो गिवन है उसके आगे बढ़ना है हमारे पास. तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, पॉपुलेशन मीन गिवन है, सैंपल मीन गिवन है, और ये तुम्हारा सिग्मा की वैल्यू 10 ml है, ठीक है. अब इसके अलावा क्या चाहिए हमें, सब कुछ तो मिल गया ना, एवरीथिंग इज देयर. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन हियर. फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द जेड. तो जेड इज व्हाट, z is basically x bar minus mu sigma root n. x bar is what, 505 505 ml, mu is 500 divide by sigma is 10 root 30. I think you'll find the z is 2.74. क्या सबका यही आ रहा है क्या? Now let's calculate the p value. ठीक है, let's calculate the p value. If you want to check p value, P इज what मैंने बताया था क्या, डबल, ये डबल साइडेड है ना, डबल साइडेड है, क्योंकि दिस इज नॉट एक डबल साइडेड. डबल साइडेड के लिए मैं क्या बता, 1 माइनस नॉर्म डॉट CDF जेड मल्टीप्लाई विथ 2. सो अगर आप कैलकुलेट करो, देखो मैं तो पाया हूँ भाई ये 0.0614, मेरी वैल्यू यही है. ओके, एंड इट मीन्स कितना आ रहा है बाकी लोगों का, 2.7 पे देखना कितना आ रहा है वैल्यू, कोई चेक करना तो 2.7 पे कितना आ रही वैल्यू. जीरो पॉइंट, करेक्ट, सही है, ये आ रहा होगा ना 0.00 ना, ये आ रहा है ना. हाँ, सिंगल नहीं है, डबल जीरो है ना, वही मैं सोच रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है. सो दिस इज योर पी, 0.006194, ठीक, 614. सो दिस टाइम पी इज लेस देन अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू तो थी 0.03, तो इससे छोटा हो गया. छोटा होगा तो रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो इस वाले को रिजेक्ट करेंगे, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे. तो इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल है वो रूल को, जो भी प्रोसेस होगा उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 500 ml जाए, तो हमें बदलना पड़ेगा प्रोसेस को. सो यू हैव टू गो फॉर डिफरेंट मशीन और में भी यू हैव टू चेंज समथिंग. क्लियर हुई बात जी सभी को? किसको डाउट था, एक मिनट, किसको डाउट था, एक मिनट, डाउट किसको था, गौतम को था. गौतम क्लियर हुआ, गौतम? और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है. तो क्लियर हो तो बढ़िया है. चलो ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है. सो हम टुमारो स्टार्ट करेंगे टी टेस्ट. टी टेस्ट के बाद देखो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. एरर देख लेंगे और फिर थोड़ा सा इनोवा टेस्ट देख लेंगे, क्योंकि
प्रॉब्लम इज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, तो दैट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो यही रोकते हैं, ठीक है।